Namaste and welcome to a new and enriching episode of Revive the Culture Connect. As you know, in this series, we talk about Indian culture, the age old Indian traditions, their significance, their relevance, and we bring to you the science behind them. However, for a minute, if we pause and think about it, where did all this begin? We would realize that this cultural wealth that we talk about is not something that we have learned as a subject. Rather, we have attained them as a part of our upbringing. Generation to generation, teachings have passed down, thereby making a strong foundation of the values that we hold. So, in a way, ये कहना गलत नहीं होगा कि in each and every Indian household, there is a guru shishya parampara going on. क्योंकि हमारे most of the times हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं. So, in today's episode, we shall talk about nurturing relationships deeply ingrained in Indian culture. From here, I would like to introduce our guest for today, a very dear friend of mine, Preet Dhingra, an accomplished entrepreneur from Delhi with an extensive experience over 3 decades in printing and advertising. Preet is a seasoned professional. He's also a trusted financial advisor in the stock exchange, guiding numerous individuals towards financial success. But let me also tell you, it's not just about business with Preet. He's also an avid athlete, gearing up to conquer his 11th marathon this year. So all the best, Preet. And despite his busy schedule, he is known for his warmth and kindness. That makes him a cherished friend, as I already told you. And with a genuine belief in nurturing relationships, Preet is someone who enriches every interaction and makes sure that he leaves a lasting impression to all those around. So here's welcoming Preet. Preet, thank you so much for making time for Revive the Culture Connect. It's a pleasure to have you on the show. Over to you, Preet. I would love to hear from you. What do you feel about Revive the Culture Connect? Thank you so much, Jyotika, for asking me to come and have a discussion on this touchy topic. It's my pleasure. It's my honor to be with you. Talk about the culture with the connectivity of the people, with the parents and the Guru Shishya Parampara, and your relationship with the family, and that is our actual culture, which I would say people are nowadays are going away, people are forgetting. So it is very, very important to stay with it. And I would love to have a discussion on this and looking forward to whatever you ask, I'll be able to give you some my thoughts, not the exact answers, but my thoughts on it. Sure, sure. Thank you so much, Preet. So, very rightly said, uh, bringing relationships as an integral part of culture is what is Indian culture all about. तो हमारे लिए हमारे फैमिलीज में जो रिलेशनशिप्स हमको मिलते हैं उन चीज़ों को वैल्यू करना उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करना एसेंशियली सबसे पहला एरिया आता है व्हेन वी टॉक ऑफ इंडियन कल्चर. उन्हीं से तो हमको बाकी चीज़ें मिली वेदर वी टॉक अबाउट जो ट्रेडिशंस हम फॉलो कर रहे हैं जो प्रैक्टिसेस हम आज कर रहे हैं. तो देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू शेयर अबाउट. आपने एक बहुत ही सेंसिटिव इशू की तरह इसको रखा सामने कि हम दूर जा रहे हैं. इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू शेयर ऑन दिस? यस डेफिनेटली. मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहता हूँ एंड मेरे आसपास मेरे कोलीग्स हैं, मेरे ऑफिस में लोग काम करते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं. जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि मम्मी पापा वहां रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं, और कभी कभी हम जाते हैं, कभी वो हमारे पास आ जाते हैं. और नॉर्मली लोग ये भी कहते हैं कि मम्मी पापा आजकल हमारे पास रहते हैं. तो मुझे थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपने मम्मी पापा को अपने पास रखते हैं, और कल तक हम ऐसा था कि उनकी उंगली पकड़ के चल रहे थे. जबकि मेरी बात करूं तो मैं आज भी, जब से मैंने होश संभाला है, मैं उनकी उंगली पकड़ के ही चलता आया हूँ. 25-30 साल से मैं बिजनेस में हूँ. मेरी वाइफ भी मेरे साथ सपोर्ट करती हैं. एक्चुअली मैं उनके साथ बिजनेस करता हूँ आजकल, तो वो ही सब कुछ संभालती है. मुझे ऐसा लगता है कि मॉम डैड ने मुझे भी पाला, मेरे बच्चों को भी उन्होंने ही पाल के बड़ा किया, वो बड़े हो रहे हैं.
हमें मौका ही नहीं दिया उन्होंने कि आप ये काम हम करें, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से संभाला, शायद हम कभी संभाल भी ना पाते। हम्म, बट यस, आजकल लोग इंडिविजुअल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज की बात करते हैं। मैं आज भी यही कहता हूँ कि मैं आज भी अपने पापा की न्यूक्लियर फैमिली का हिस्सा हूँ। हम्म, हमें, हमारा कल्चर यही कहता है कि हम जॉइंट फैमिलीज में रहते आए हैं, इकट्ठे खाना बनता था, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी होती थी, लेकिन उसके साथ लोग भी बहुत सारे होते थे। हम्म, आजकल प्रॉब्लम्स छोटी भी होती हैं, लेकिन लोग नहीं होते, बहुत लोग अकेला फील करते हैं, उनको अपना कोई सोर्स दिखाई नहीं देता। पेरेंट्स जो होते हैं हमारा सोर्स रहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आप कुछ आपसे पूछना कहेंगे? चाह रही हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं रिवाइव करने की, कल्चर से कनेक्ट की, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही संवेदनशील एक टॉपिक पर, जिसको कहना है कि अगर हम रूट्स की बात करें तो हम उन रूट्स, उन जड़ों की ही बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ शेयर करिए कि आप किस तरह से रिवाइव कर रहे हैं। पहले हम उस बात पे आते हैं कि आप किस तरह से रिवाइव कर रहे हैं, फिर हम आपकी जितनी बातें आपने अभी बताई हम इस पे वापस आएंगे, सो दैट वी आर एबल टू रिफ्लेक्ट कि अ, जो ये रूट्स हैं इनको संभाले रखना क्यों जरूरी है। मैं इसको ना प्रैक्टिस नहीं कहूंगा, हम्म, ये हमारी इनबिल्ट हो गया है। हमारी ना कल, मेरी फैमिली में, मेरे डैड की फैमिली में हमें लगता है कि वो हमें पूरा करते हैं, हमारी फैमिली उनसे ही पूरी होती है। मतलब अगर वो मेरे सामने नहीं होते तो घर खाली रहता है। मैं जैसे एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं। हम्म, हम दोनों वर्किंग हैं, 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं, वी वर्क हार्ड फॉर द फुल डे, समटाइम वी डू टॉक एट होम, कई बार नहीं भी बात होती, बच्चे स्कूल से आते हैं, कभी उनसे बात होती है, कभी नहीं भी हो पाती। हम्म, एंड देन वी गो बैक 6:30, 7 o'clock, समटाइम 7:30, 8 o'clock, हम्म, एंड 5 मिनट्स, 10 मिनट्स वी सिट विद पेरेंट्स, उनसे बात होती है, हालचाल होता है, चाय पीते हैं, बीच में दो फोन बजते हैं, टाइम उनको दे ही नहीं पाते। हम्म, पिछले कुछ सालों में ना हमने एक बड़ी अच्छी प्लानिंग कह लीजिए, या बाय डिफॉल्ट बन गया इस तरह। हम क्या करते हैं, 8-8:30 जब खाना खा लेते हैं, तो शाम को। मेरी वाइफ थोड़ा बच्चे, शाम को जब रात को हम घर हाँ, पहुंचते हैं, हाँ, हाँ, तो मेरी वाइफ थोड़ा बच्चों के स्कूल का, सब्जेक्ट्स का, स्कूल में आज क्या हुआ, उन पे एक आध घंटा लगाती है। तो हम्म, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। हम करते क्या है, माई डैड इज 77 नाउ एंड मॉम इज 71, अच्छा, सो दे हैव गॉन ओल्ड। और उनको ना बड़ी, मुझे महसूस होता है कि उनको, वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं कि मुझे बताओ आज क्या हुआ, हम्म, आज क्या किया। हम्म, और मैं उनको कोशिश करता हूँ कि अच्छी अच्छी चीजें बता दूं, बिकॉज अब वो, उनकी एज ऐसी नहीं रही कि हम्म, वो प्रेशर झेल। बहुत उन्होंने काम करके दिया है, हमारी लाइफ सारी उनके ही सहारे चलती आई है। तो हम्म, हम लोगों ने एक ऐसा बनाया कि खाना खाने के बाद 8:30 अराउंड, आई सिट विद देम एंड माय वाइफ सिट्स विद द किड्स। तो एक रूम में हम लोग ना कुछ गेम खेलते हैं उनसे। कभी अच्छा, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तीनों, अच्छा, मैं, मॉम और डैड, और कभी हम ताश खेलते हैं, हम्म, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं। तो और मुझे ऐसा लगता है इतने सालों का कनेक्ट है। वो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हमें ब्रश करने की आदत होती है ना रोज की, सुबह अच्छा, उठ के ब्रश करना होता हाँ, है, हाँ, हाँ, ये गेम भी हमारी ना वो बन गई। इसमें right, दो चीजें होती हैं, एक तो मुझे लगभग 45 मिनट्स, 1 आवर उनके साथ बैठने का मौका मिलता है। हम्म, तो कुछ दिन की शेयरिंग होती है, कुछ उनकी तकलीफें, कोई बॉडी की प्रॉब्लम, कोई दवाइयां कम हो रही हैं या क्या, कोई रिलेटिव्स की कहानियां सुनने को मिलती हैं। हम्म, और दूसरा, उनको भी मेरे साथ बैठ के थोड़ी तसल्ली सी फील होती है कि आई एम गिविंग टाइम, या उनको ये महसूस होता है कि उनके साथ, उनको जो मेरा भी टाइम मिला, तो वो अपनी शेयरिंग्स मेरे साथ करते हैं। और मैं सच बताऊं, कभी कभी मैं जानबूझ के हार जाता हूँ उनसे। मुझे मुझे ये महसूस होता है बहुत बार कि हाँ, मेरे डैड को जीत के बड़ी खुशी मिलती है, अच्छा, मैं जानबूझ के हार जाता हूँ। हाँ, हाँ, और मेरा मकसद जीतना नहीं होता वहां पे, बिल्कुल। मेरा मकसद होता है कि वो अगर खुश होते हैं तो उस दिन, उस रात को वो बहुत अच्छे से सोते हैं कि देखा मैंने तुम्हें हरा दिया। सो इसको आप कनेक्ट भी कह कितनी सकते हैं। खूबसूरत पर बात मुझे है ना, आपकी, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये सारी बात कही। और
जैसा मैंने आपके बारे में सबको बताया, आई थिंक इट यू ट्रूली स्टैंड फॉर इट, कि यू यू मेक श्योर कि आपने वो वार्मथ उनको वापस दी। आज इतनी फास्ट जिंदगी में जहाँ सब भाग रहे हैं, घड़ी के साथ भाग रहे हैं, वहाँ पे वो एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ सिटिंग टुगेदर एट द ब्रेकफास्ट टेबल एट एवरी मील इज नॉट पॉसिबल practically, but you have made it possible, that you spend time with them, quality time with them, and that also not only few days in a week, आप उसको as a ritual, मैं ये वर्ड जानबूझ के यहाँ डालना चाहती हूँ, एज अ ट्रेडिशन, एज अ रिचुअल, क्योंकि ये पहले ऐसा ट्रेडिशन रहा है। आपने सही कहा, पहले हमारे जॉइंट फैमिलीज का एग्जिस्टेंस बहुत हुआ था, होता था। एवरीबडी यूज टू सिट टुगेदर, एंड उस उस तरह से बैठने का एक खास मकसद होता था, शेयरिंग अलोंग विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जो है, तो आप फूड भी शेयर कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ टाइम दे रहे हो, और आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हो। तो वो चीजें आज जब नहीं कर पा रहे हैं हम, तो अगर हम आपकी बात सुने तो मतलब मुझे सुन के ही इतनी खुशी आ रही है कि ये सिनेरियो कितना अच्छा होता होगा, कि पापा जी खुश हो रहे हैं देख कर कि अरे वाह, आज तो मैंने तुम्हें हरा दिया, और ये चीज उनको वो कितना रेलिश करते होंगे। आई एम श्योर दिस इज द काइंड ऑफ फीलिंग दे वुड हैव व्हेन यू आर एबल टू गिव देम दैट क्वालिटी टाइम, राइट? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, ये ना फीलिंग जो मैं उनके चेहरे पे देखता हूँ, ये ना मैं शायद अपने वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी। पर मुझे लगता है कि ये अब हमारे अंदर बन गई है, हमारे अंदर ये चीज हमारी फैमिली में बन गई है। और इसका ना एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मैं आगे आगे की जनरेशन में देखता हूँ, जी जी। इवन माय किड्स वो देखते हैं कि हम्म। मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के टाइम देता हूँ। वो भी ये ऑटोमेटिकली ये चीज सीखते हैं। अब उनको एब्सोल्युटली बुक्स पढ़ के एब्सोल्युटली, या बच्चे तो टीवी। वैसे भी, उनको जो आप सिखाएंगे उससे ज्यादा वो जो देखेंगे उसको तुरंत पिक कर लेते हैं। तो आई थिंक ये एक तरह से हमारे बड़े और हमारे छोटे दोनों की तरफ एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो कि हमको उनसे जोड़े रखता है, और आने वाली पीढ़ी को हमसे जोड़ने की सारी तैयारी है यहाँ पर, कि भाई इससे क्या फायदे हैं, आप खुद देख सकते हैं। आई एम श्योर आप पूरे दिन की थकान वहां बैठने के बाद आप बिल्कुल महसूस नहीं करते होंगे। देयर मस्ट बी सो मच ऑफ पीस इन योर माइंड एट दैट मोमेंट, जब आप उनके साथ बैठते हैं, खेल में सब भूल जाते हैं, करेक्ट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये ना बड़ा मजेदार रहता है, बहुत बार ये बड़ा मजेदार रहता है। और एक चीज मैं और बताऊं कि ये जो कनेक्ट होता है उनको उसके बाद, मैं इफ आई एम नॉट विद देम फॉर लास्ट नेक्स्ट 22 आवर्स 23 आवर्स, उनको ज्यादा कमी महसूस नहीं होती। बिकॉज ये एक वो बन गया, शेड्यूल बन गया कि हम शाम को खेलेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो राइट राइट। बहुत सारी चीजें उनके मन की बात मुझे पता चलती है उस टाइम पे वंडरफुल। इसी तरह मैं यहाँ पे मैं भी जोड़ना चाहूंगी, जैसे हम मेरे यहाँ पे भी इस तरीके का है कि जब एक डिनर तो साथ होता है, हाँ, आपकी तरह बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो पाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, बट एक वीक का एक डिनर हमारा साथ होता है। और उस दौरान जैसे मेरे फादर को अंताक्षरी का बहुत शौक रहा है, जैसा भी गा आके। पाते थे, तो मैं उनका साथ उसमें देती हूँ, तो मतलब वो उस समय एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि चलो भाई इससे गाओ और अब उससे गाओ पुराने गाने, तो हम सदियों ट्रैवल कर लेते हैं इधर से उधर और उधर से इधर। तो आई एम श्योर, मतलब मैं उस चीज को पूरी तरह से समझ पा रही हूँ जब आपसे बात कर रही हूँ कि वो कैसा, फीलिंग कैसी होगी। एंड इट इज डेफिनेटली नॉट टू बी फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वो नहीं करी जा सकती है। और इसमें एक मजेदार चीज आपको मैं और बताता हूँ कि कभी कभी वो किस्से सुनाते हैं, हाँ हाँ और सामने सुनने वाला मैं हूँ जो हाँ पिछले सालों से सुन रहा हूँ। हाँ। और कई कई किस्से तो ऐसे भी सुनता हूँ जो मैंने 30 बार सुने हुए हैं उनसे। क्योंकि आप देखिए, उनको कोई चाहिए जिनको वो हम्म अपनी बातें सुना। हम्म। सो लेकिन वो कोई सुनता है तो उनको अच्छा लगता है। हम ये करेक्ट। भूल जाते हैं हाँ एक्चुअल में। हाँ। मेरे आसपास में लोगों को देखता हूँ, वो भूल जाते हैं कि हम लोग भी बूढ़े होने वाले हैं। ये लाइफ का साइकिल है। साइकिल। कल तक वो कल तक वो बिजी थे, हम बच्चे थे। आज हम बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं। कल हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे। हम राइट। हम लोग ओल्ड एज में चले जाएंगे। हमें साथ चाहिए होगा। अगर हम आज अपने पेरेंट्स को साथ दे रहे होंगे तो बच्चे इनबिल्ट वो चीजें ले रहे होंगे कि हमें उनके अंदर करेक्टर में वो चीजें चली जाएंगी कि हमें टाइम देना चाहिए। या
वो चाहिए वर्ड भी नहीं होगा कि वो तो देना ही है, मतलब हाँ इट इज लाइक फूड तो खाना ही है, हाँ, इट इज लाइक इम्बाइब, दैट। इट विल बी इम्बाइब। और इसको अगर हम एब्सोल्युटली। साइंटिफिकली भी बात करें, जिस जो भाषा आज की जनरेशन ज्यादा अच्छे से समझती है कि हर हर चीज के पीछे कोई साइंस है, तो आप मानते हैं इसके पीछे भी साइंस है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए ये चीज तो मुझे प्रीत ढींगरा बनाती है ना, ये हाँ तो मुझे, मैं ऐसा क्यों हूं, हाँ मैंने आज जो भी मुकाम हासिल किया है, मतलब वैसे तो दुनिया में सब लोग गोल सर्कल में घूम रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई किसी से, मतलब हर किसी के आगे भी लोग हैं पीछे भी हैं। तो आज हम ये समझते हैं कि मैंने कुछ कर लिया, लेकिन हम्म हम अपनी ही तो पाइल अप स्टोरी है वो, हम्म वही उसी सोच तो आया है, उसी फैमिली से तो मुझे मैं बना हूं। हर मेरे में अगर 10 गुण होंगे तो वो 8 वो उसी फैमिली के खून से, उसी तौर तरीके से, उसी फूड से, हम्म, उसी से तो आया है। इन लोगों को पता नहीं चलता। कभी कभी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अ, कुछ दिन पहले मेरे एक क्लास फेलो, जो हम लोग कभी स्कूल और कॉलेज में इकट्ठे पढ़ा करते थे, हम्म, उसका फोन मेरे पास आता। आई स्टे इन मयूर विहार, दिल्ली। अच्छा सो हमारे ना घर के बिल्कुल पास एक वृद्धाश्रम है। अच्छा। तो उसका मुझे फोन आता है कि यार प्रीत मेरा एक काम करेगा। मैंने हम्म कहा बोलना। कह रहा यार मम्मी जो है ना वो वृद्धाश्रम में रहती हैं आपके घर के पास ही। एंड आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे तो पहले पहले ही सुन के बड़ा बड़ा हम्म धक्का सा लगा कि हम्म आपकी, मतलब आप सलामत हो और अच्छे पैसे कमा रहे हो, अच्छी जॉब में हो, फिर आपकी मम्मी कैसे यहाँ पे है। हम्म इसे यार सरकम कुछ ऐसे हैं, वाइफ से उनका ट्यूनिंग नहीं बैठती, तो शी स्टेज, शी प्रेफर्स, उनको ज्यादा मजा है वहां पे, वृद्ध आश्रम में ज्यादा मजा आता है। कह हम्म रहे यार उनका ना कल बर्थडे है और मैं दूर हूं और मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं निकल नहीं पा रहा, पर मेरे हम्म को, मेरे मन में ये है कि अगर कोई उनके पास चला जाए, एक केक लेके चल जाए, तो शी विल फील हैप्पी। तो मुझे काफी तकलीफ पहुंची इस बात के लिए, बट मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, इस बहाने आंटी से मिलने का मौका मिलेगा। शायद 10-15 साल 20 साल हो गए उनसे मिले हुए। हम्म तो ठीक है, नो वरी, आई डू इट, इट वुड बी माय प्लेजर टू गो एंड मीट हर। एंड और मैंने किया भी वैसे। हम्म अब अगली बात वो मुझे ये कहता है कि यार वैसे मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि तू कैसे मैनेज कर लेता है, कैसे फैमिली बच्चे, अंकल आंटी अभी भी तेरे साथ ही रह रहे हैं। हाँ तो मैंने उसको कहा कि बॉस यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं उनको रख सकता। हम्म जब से मैंने कोई संभाला है उन्होंने ही मुझे रखा है, ये उनका एहसान है कि उन्होंने ही मेरे पे एहसान करके मुझे रखा हुआ है घर में। नहीं तो मेरी अभी इतनी हस्ती नहीं हुई कि मैं उनको घर में रख सकता। तो ये मैं किस्सा मैंने इसलिए सिखाया कि ये ना बहुत कॉमन चीजें हो गई हाँ, लोगों की, एक्चुअल नजरिया चेंज जेन्युइन हो गया है, प्रॉब्लम। नजरिया बदल गया। देखिए, आपस में रहने में तालमेल बिठाने से बैठता है। और कोई भी दो लोग हों, चाहे वो आप और आपके पार्टनर हों, आप और आपके बच्चे हों, या बच्चे आपस में हों, डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक बहुत ही जायज सी बात है, आना ही आना है। बट हाउ डू यू वर्क ऑन इट इज what comes under nurturing relationships. I'm sure you would agree and want to say something on this. एब्सोल्युटली। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने ये सीखा है अपनी जिंदगी से कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो Hmm. वो 5 लोग जो आपकी फैमिली हैं, फैमिली थे और फैमिली रहेंगे, एक्चुअल में वही आपका सपोर्ट होते हैं। कोई और आपका सपोर्ट हो ही नहीं सकता, मतलब आपको रिप्लेसमेंट मिल ही नहीं सकती। आप बहुत सोचते होंगे कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास, कोविड ने हमें सिखाया है एक्चुअली, कोविड ने बिल्कुल हमें बहुत कुछ सिखाया कि बिल्कुल सिखाया। करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी लोगों के घर में ही रह गए, क्योंकि हम्म सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो लोग कमरों में ही अकेले ही रह गए। तो मेरा मानना है कि ये ईगो और ये प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा हाँ नहीं कि मेरी प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं। हम्म हर जनरेशन ये समझती है कि हम 25 साल एडवांस हैं, हम भी समझते रहे, हमारी जनरेशन तो हमारी जनरेशन भी अब ऐसी है। मैं हाँ आपको बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग तो गांव के लेफ्ट आउट रह गए हैं, ये तो लोग बहुत आगे निकल गए। हाँ, टेक्नोलॉजिकली वेरी बट फास्ट, माइंड ही उतना शार्प होता जा रहा है। एब्सोल्युटली उनकी ग्रास्पिंग पावर इतनी बढ़ती चली जा रही है, जो हम्म चीज हमें 10 मिनट में समझ में आती है उनको
एक्चुअली हमने कंप्यूटर सीखा है, उनके अंदर कंप्यूटर है, दे आर इनबिल्ट कंप्यूटर। राइट, राइट। मतलब जिस तरह से और कोई इसीलिए प्रोग्राम को सेट कर। इसीलिए ये जो एक सीरीज जो हमने चलाई ना, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो जो गैप्स है उनको ब्रिज करें, लेट देम अंडरस्टैंड कि अगर घर में कोई एक प्रथा है, कोई मान्यता है या कोई ट्रेडिशन है, या आज की बात मैं करूं तो अगर मैं हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे रूट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारा आधार है, उसको अगर हमने नहीं संभाला तो क्या है हाथ में। पतंग भी कहाँ तक उड़ेगी अगर उसकी डोर नहीं संभालेंगे तो जो पेरेंट्स एब्सोल्युटली। हमारे होते हैं, तो वो जो गाइडेंस देते हैं, उनका जो सपोर्ट होता है, अगर हम साइंटिफिकली इसकी बात करें तो दिस इज इक्वल टू, स्ट्रेट अवे इक्वल टू मेंटल पीस। अगर आज हम बात करें तो मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं, पीपल आर गेटिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो जब आपके पास बड़े होते हैं, सो इट इज नॉट दैट दे हैव बिकम ओल्ड, तो वो उनका डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। वी आर ऑल्सो इक्वली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। द पीस दैट वी फाइंड एब्सोल्युटली। व्हेन यू कम बैक होम, आपको वो सुख मिलता है, वो सुकून मिलता है। आपको लगता है हाँ, कोई है जहाँ पे मैं जाकर के अपनी मन की बात कह लूं। एंड नहीं भी कई बार बात हो पाती है ना, सो द एनर्जीज, द वाइब्स दैट दे गिव वेर एवर दे आर, तो ये जड़ें हमारी ऐसी होती हैं कि ये जड़ें हमेशा हमको नरिश कर रही होती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू पुट अक्रॉस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म की नर्चरिंग रिलेशनशिप्स इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। कहीं पे कुछ और है तो इंडियन कल्चर इज ऑलवेज नोन फॉर दिस। सो आप इसको मैं एक लाइन और मैं आपको बताना चाहूंगा। हम आजकल हम बिकॉज हमें 90% ऑफ द टाइम हम दिखावे में जीवन जीते हैं। इवन खाना पीना रहना कपड़े पहनना भी उसी तरह का पहनते हैं अग्री ताकि अग्री। लोगों को अच्छा लगे। हम्म। और जबकि अंदर से हम सबको पता होता है कि कोई खुश नहीं हो रहा, हम्म। कोई खुश नहीं हो रहा उस चीज से। खुश सिर्फ चार लोग ही होंगे आपकी अचीवमेंट से। जब आप कुछ अचीव करते हो, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, और हम्म। ये आप जाके शेयर शेयर करते हो अपनी फैमिली के साथ, राइट। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मॉम डैड के साथ। तो बिलीव मी, जो उनके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन होती है, वो हम्म। मुझे लगता है कि वो दुनिया में कहीं नहीं होती। आप किसी को नहीं। कुछ भी अचीवमेंट बताइए, लोग आपको आगे बढ़ना तो देखना चाहते हैं, बट खुद से आगे बढ़ना देखना नहीं चाहता कोई भी। सिर्फ माँ बाप और फैमिली ऐसे लोग होते हैं जो आपको एक्चुअल में आगे बढ़ना देखना बिल्कुल चाहते हैं। सही वो आपने चाहते हैं कि बोला। आप बहुत तरक्की बिल्कुल सही। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम वैलिडेशन ढूंढते हैं बाहर, जबकि करें। एब्सोल्युटली। आवर आइडेंटिटी इज व्हाट वी आर एंड व्हाट वी हैव गेन्ड फ्रॉम आवर रूट्स, आवर पेरेंट्स। और वैलिडेशन की कहीं दरकार ही नहीं है अगर देखा जाए तो। व्हाई डू यू वांट एग्जैक्टली। वैलिडेशन अक्रॉस एरियाज? तो कल्चरली हमेशा से फैमिली एक क्लोज निट बॉन्ड बनाए रखती है। और अगर हम उसका पॉजिटिव असर देखें तो वो हमारे इमोशनल वेलबींग का सबसे बड़ा आधार है। जी जी And जी। that is why एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। nurturing relationships should be, should become a tradition। जैसा आप उसको ट्रेडिशन भी नहीं कहना चाहते हैं, आप उसको कोई लेबल ही नहीं देना चाहते। इट्स अ पार्ट ऑफ यू। इट इज सो ब्यूटीफुल। Absolutely, absolutely, absolutely. So you don't have to think about it. It हाँ। inherent. It यस। should come like we eat, like we go for morning walk, like we do exercise. And the If people benefits will do, follow. And these benefits are absolutely. required in the current times. The numbers are increasing day by day. The cases of mental instability are increasing day by day. Why? Because we are running away from the places where we So are always nurtured and cared. Why run away? जुड़े रहो। हम जुड़े absolutely. रहेंगे तो हमारी उड़ान जो है वो और ऊंची हो जाएगी। आप ये क्वेश्चन किसी से भी पूछिए हम्म। कि अगर आप जैसे लोगों के नॉर्मली घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं, मदर की वाइफ के साथ, बहुत सारे लोगों के आसपास हमारे रहते हैं। आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि एक सिनेरियो देते हैं कि हम्म। आपकी और आपकी मम्मी, आपकी वाइफ की और आपकी मम्मी का ना बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, हम्म। तो आपको क्या मिलेगा इससे? तो वो नॉर्मली मेरे दोस्त वो लोग बोलते हैं, मैं तो बिना बिना नहाए गंगा नहाए हो जाएगा मेरे लिए, तो मेरी लाइफ में तो पीस आ जाएगा। एग्जैक्टली। बिलीव मी, हाँ। ये
ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम लोगों ने खुद इस तरह की लाइफ जिए हैं कि हमने उनकी आइडेंटिटी को अलग रख के नई आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है। हम उनके साथ उनके अंडर रह के भी बना सकते हैं। हाँ, इसका भी एक छोटा सा बातचीत एग्जाम्पल। करना एक बहुत जरूरी है। वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड नेवर गेट ब्रोकन। आप कम्युनिकेट करिए, आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि जनरेशन का फर्क तो है, समय का फर्क है, डेफिनेटली, टेक्नोलॉजी का फर्क डेफिनेटली, है। दे वुड नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब यही चीज आप सिनेरियो चेंज कर दीजिए, आपके सामने आपकी जनरेशन, बच्चों की जनरेशन सामने है। सो जिनके एग्जैक्टली, लिए ये, अब जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये जो एक सीरीज है जिसके जरिए हम अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो करा जा रहा है उसके पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है, वो उस जनरेशन के लिए। तो आवर अटेम्प्ट टू नर्चर देम, so the same thing is going to happen with us. The gap is there, the technology is filling in every space, and we also will find ourselves outdated, and we will have to एब्सोल्युटली, also face a similar situation. So अगर अभी से इसकी तैयारी करी जाए, डे इन डे आउट, हम उन गैप्स को ब्रिज कर पाएंगे। एंड द मेंटल पीस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम आवर एल्डर्स आल्सो इज नीडेड फॉर आवर यंगर वंस। उनके साथ भी समय देना जरूरी है, उनको भी इन चीजों का ज्ञान देना है, बिकॉज अदरवाइज हाउ विल बी द टीचिंग्स पास ऑन। सो एग्जैक्टली, our वेरी ट्रू, our वेरी ट्रू, responsibility both towards the elders as well as towards our younger ones is equal, and it falls into एग्जैक्टली। nurturing the relationships as what we are talking today, right? The kind of scenario we are facing every day, if we do not follow the things which you are suggesting, we will lost our identity very soon, Correct. because century passes like in a second, split of second, when you will not be हम इंडियन, हम भारतीय कैसे बनेंगे? Mm. हमारी वैल्यूज और हमारी फैमिली कल्चर से ही हम लोग हिंदुस्तानी रहेंगे। नहीं तो हम लोग, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जब दूसरे कल्चर की चीजें उठाते हैं तो आपको वो कल्चर अच्छा लगता है तो उठाते हैं, लेकिन हम ना तो उस कल्चर में अडेप्ट कर पाते हैं और हम अपना भी खराब कर देते हैं। द Mhm. टुडे सिनेरियो लाइक दैट, अगर ये वैल्यूज इस तरह से नहीं होंगी तो हम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। हमारा जो रिच कल्चर हेरिटेज जो हमारा 5,000 10,000 ईयर्स से चल रहा है, वी विल लूज इन अ स्प्लिट ऑफ टाइम। आई वुड से कि आप अपने, यस ओपिनियन डिफरेंस रहेगा, एज का डिफरेंस है, हम बिल्कुल। लोग नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे से आगे फिर जनरेशन है, हम्म। बट ये बातचीत से, कन्वर्सेशन से आप आराम से चीजों का हल निकाल सकते हैं। आप एक सोच के देखें कि इसका अगर वो हल निकल आता है तो एडवांटेज कितनी मिलने वाली, कितना पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। आपका मकान घर बनता है जब माँ बाप रहते हैं। हम्म। सो आई मैं थिंक इसमें ये बहुत ही वैल्यूबल डिस्कशन रही है आज। और इट्स अ वेरी सेंसिटिव, इम्पोर्टेंट, इमोशनल एंड साइंस पैक्ड इशू। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू नर्चर द रिलेशनशिप्स। इन्हीं रिलेशनशिप्स की वजह आई से एम आज हम सेलिब्रेशंस कर पा रहे हैं, वी एंजॉय द फूड। यू नो, वी टॉक ऑफ इंडियन कल्चर, उसमें सब कुछ आता है। यू नो, रंग बिरंगे अटायर्स हैं, गीत हैं, डांसेस हैं, फूड है, सेलिब्रेशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, लेकिन इन सब की धरोहर को हमें पास ऑन करना है। एंड सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नर्चर द रिलेशनशिप्स, बड़ों के साथ भी और बच्चों के साथ भी। And that is how it will go on, and that is how we will keep everything intact. So एब्सोल्युटली। thank you so much, Preet. Thank you for your time, thank you for your valuable words. आपने जो कुछ आज शेयर किया, I hope with the help of this platform we are able to make a change in people's way of thinking, and everybody is able to gain some benefit and hold on to our culture. And that's what we are talking about, to revive the culture connect. मैं ना इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि how it is important and why it is important to stay connected with your most important relationships and your source। Yeah. जब आप उसका क्या एडवांटेज आपको मिल सकता है, Hmm. and you will be amazed to know, I
I started my journey very early in the life, so kind of stress I have faced. Hmm. At the age of 28, I got diabetic. Oh. And let me tell you, being diabetic in a such a early age, Hmm. actually जिंदगी का हनीमून खत्म हो जाता है आपका। आप कुछ भी खा नहीं हाँ। सकते, आप किसी पार्टी में नहीं जाते। एंड द बैक ऑफ योर माइंड हर Hmm. वक्त यही चलता रहता है कि यार आई एम नॉट वेल, आई एम इल एक्चुअली। द बेटर वर्ड इज आई एम इल। True. Hmm. मैं इसमें एक शेयर करना चाहता हूँ कि सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड इंटरनल पीस की वजह से, Hmm. क्योंकि मेरी फैमिली में वो मुझे पीस मिलता है, मैंने इस साल अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है। Ah. ये आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बट आपको बहुत सारे लोग भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, आई एम पहली बात तो विदाउट ये सुनने में नहीं आता है जल्दी कि यू हैव टोटली रिवर्स्ड डायबिटीज इज एज जैसा आप बता रहे हैं अभी। तो हाउ वाज दिस पॉसिबल? इसमें बहुत सारा सपोर्ट मेरी वाइफ का, मेरी मदर का और हम्म। फैमिली का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बीइंग एथलीट होना भी इसमें सपोर्टिव रोल ऐड करता है। आई एम श्योर, अ, या। लेकिन लेकिन आपकी, क्योंकि आपको इंटरनल पीस मिलती है, यू कैन शेयर योरसेल्फ, आपके हम्म। अंदर कोई अकेलापन नहीं होता। हम्म। इस चीज का भी बहुत एडवांटेज मिलता है। इन लोगों ने बहुत सपोर्ट, मेरे फूड सिस्टम को चेंज किया। और उनकी सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाता। हम्म। और आज मैं ये अपने आप को 20 साल पीछे ले जाता हूँ कि मैं उतना यंग लगता हूँ। फील्स आई यंगर। कैन मेक, yes, I can make changes in others life also. And I would add, अगर किसी को इस सब्जेक्ट पे भी मेरे से बात करनी हो, हम्म। बहुत सिंपल सोल्यूशन में, अगर आपको, आप फैमिली के साथ हैं और आपकी फैमिली में बिल्कुल एक तरह से आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम्म। कोई भी बीमारी बड़ी चीज नहीं होती। नो इलनेस इज दैट बिग जो आप रिवर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये ये आपने बहुत बड़ा बहुत ही एक बोलते हैं ना जिसको कि इतनी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल बीमारी और हम बहुत ज्यादा दूर कहीं रहते नहीं, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी। और जैसे आपने डायबिटीज जो कि इतनी अर्ली एज में आपको यू वर डायग्नोस्ड फॉर इट, एंड यू एबल टू नाउ यू आर सेइंग टोटल 100% आप उसको ओवरकम कर चुके हैं, राइट? एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो, मैं 4 इंजेक्शन पे पहुंच गया था। आई यूज्ड टू ओह। टेक 4 इंजेक्शन एवरी डे ऑफ इंसुलिन इन लास्ट थ्री फोर ओह years, and now माय। I am not only removed the injections, I am not taking any tablet for diabetes, and I am feeling full fit, आई एम श्योर 100% fit. it has this has been a very very wonderful experience on you, and आप जो बता रहे हैं उसको पूरी तरह से मानने को मेरा मन करता है। आई एम श्योर जो लिसनर्स हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि कैसे वी कैन डेफिनेटली पुट इट कि आप देखिए इसके पीछे यही साइंस है कि आप सुकून में हैं, आपका दिमाग सुकून में है, तो आपकी जितनी भी शारीरिक और मानसिक परेशानी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ओझल होती चली जा रही है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद यू। Exactly. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और तो एक चीज ये और जो बात से हम बात लोगों ने, निकली तो हाँ हाँ, और एक चीज और जो हम लोगों ने बात करी, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी अगर हम देखें कि हम रूट्स के साथ जुड़े रहे, हमारे पेरेंट्स के साथ जुड़े रहे, तो उसका असर, एक तो ये सीधा सीधा असर हुआ कि हम उनसे जुड़े हैं तो हमारे बच्चे भी हमसे वो कनेक्ट जो है बनाए रखेंगे। दूसरा, बड़ों का घर में होना बच्चों के लिए भी कितना हेल्पफुल रहता है हर एंगल से, वेदर इट इज ब्रिंगिंग द ट्रेडिशनल फूड, वेदर इट इज passing on to the teachings apart from us, our parents do the same for our kids. Then एब्सोल्युटली स्टोरी टेलिंग का एक सिलसिला जो कि इतना इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में, आप अपनी किसी बात को कह पाएं, ये भी एक हुनर ही हो गया है आजकल कि हर इंसान अपनी बात को कह पा रहा है कि नहीं। दैट्स ऑल्सो बिल्कुल वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट, अगेन कम्स फ्रॉम द learnings that we get in our house. So एब्सोल्युटली thank you so very much, Preet. I think it's been tremendously wonderful having spoken to you. मुझे तो इतनी बेहद खुशी है कि इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और हम इस इतने अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। And so to everyone who has any queries regarding the expertise that Preet holds, और अभी जो आपने बोला, you've been able to reverse the illness, किसी भी बारे में आप बात कर सकते हैं। मुझे तो लगता है प्रीत से हम किसी भी बारे में बात कर सकते हैं, जो मन में आए, अगर सवाल है तो आप
प्रीत से बात करिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा और कहीं न कहीं उसमें आपको कोई सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। We will have Preet's email ID in the description. Should you have any interest on the financial aspects, on your inquiries about printing and advertising, the areas that Preet has expertise on, या आप एथलीट हैं और कुछ उनसे उनके experiences जानना चाहते हैं, feel free to write to him on his email, which will be mentioned in the description. And till we connect again on another enriching episode of Revive the Culture Connect, keep reviving, keep celebrating, and keep connecting to your roots that truly make you. Thank you so much. Thank you.